Okay, so this is where we were in our project, right? We had our home page, then we have a login button, right? As soon as we click on login, we go here, right? Here again we had a form which is a reactive form, right? यहाँ हमने validation लगाया था कुछ ना कुछ, right? Now one important thing which I need to tell you is कि generally ये जो validation है, राइट इसमें ये जो डिस्प्ले हो रहा है रेड कलर में, राइट इन एवरी फॉर्म ऑलमोस्ट दिस वुड बी द सेम, राइट तो अगर कोई दूसरा पेज है, राइट इफ देर इज सम अदर पेज, राइट तो वहाँ पे भी सेम थिंग जो है वो अप्लाई होनी चाहिए, यानी सेम सी एस एस अप्लाई होना चाहिए, राइट सो आई विल कम टू दिस लेटर, राइट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल फर्स्ट क्रिएट दिस साइन अप फॉर्म, right? So to do that, I'll go into my sign up component. This is my sign up component, right? I'll go to sign up component.ts. Here I'll import form group comma form control comma validators from @angular / forms. This is the first thing which I have done. Next, what will I do? Right, I'll have a sign up form, which will be an object of form group class, which will contain a JSON. Inside this, I'll have the first field as name, which will be a form control, right? And I'll have validators dot required, right? You can also have some validators dot min length, validators dot min length, and I can give say at least 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 कैरेक्टर्स का एटलीस्ट तुम्हारा नेम होना चाहिए, राइट? ये एक वैलिडेशन मैं डाल देता हूँ उसमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, राइट? देन अलॉन्ग विद दैट आई विल हैव एन ईमेल, right? We'll use this email as our username also. Again, I'll have validators dot required and validators dot email, right? Then I have a mobile. I'll say new again form control. Again I would say validators dot required, and mobile number 10 का होता है तो I can say validators dot min length 10 and validators dot min length, sorry, max length, that will also be 10, right? And along with this mobile number के लिए what you should also ensure that it is say it only contains number. So for that we can have validators dot pattern, right? And inside this pattern, right, we can set some pattern कि अपने इसका pattern क्या होना चाहिए. This pattern is generally a regular expression that we need to set. So what I'll do is I'll search for some regular expression. I'll say regex for Indian mobile number. तो जनरली इंडिया के मोबाइल नंबर कैसे 7 से स्टार्ट होते हैं एंड 10 डिजिट्स के होते हैं, right? And I'll try to put this pattern. I don't know if this will work or not, but I'll just put in there, right? Let's see if it works or if it does not, right? Then I'll have another field password,
again new form control, and I'll have validators dot min length, I'll say 6. Right, that is what I would have in my sign up form. ठीक है. Now in my signup.component.html, what I'll do is, right, I'll have a form. In this, I'll give first a form group, then I'll have a div. Right, this div would be for name. I'll say pehle label will be name, and I'll have input type equals to text, right, and form control name equals to, I'll say name. ठीक है, ये मेरा इनपुट फील्ड बना. देन आई हैव एन एरर फील्ड फॉर द सेम, यानी जो ng if से डिस्प्ले होगा, तो आई से स्टार ng if इक्वल्स टू, राइट, एंड व्हाट विल आई से, आई से कि साइन अप फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट नेम, ठीक है, डॉट टच्ड और sign up form dot controls dot name dot dirty, राइट, इसको ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, एंड इट इज वैलिड, सॉरी इनवैलिड. तो अगर ये इनवैलिड है तो यहाँ पर तो ही ये एरर मैसेज जो है यहाँ डिस्प्ले होगा. Right, will display it in some p tag, and here what will I say? I'll simply say name is required and should be at least 5 characters. Right, ऐसा एक कुछ तो मैसेज आप दे सकते हो. This is a custom message, right? And in this I'll try to give a class. And this class, what will I give? I'll say field error. ये class मैं देने की कोशिश करता हूँ. Right, now let us see if this works. ठीक है, तो वैलिडेशन तो चल गया कि एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स उसका होना चाहिए, वो वाला 4 कैरेक्टर्स पे एरर आ रहा है. लेकिन जो क्लास हमने लिया था, दैट क्लास इज नॉट अप्लाइड हियर. व्हाई इज इट नॉट अप्लाइड? बिकॉज ये जो फील्ड एरर क्लास था, ये फील्ड एरर क्लास हमने कहाँ बनाया था? login.component.css में बनाया था. उस वजह से क्या हो रहा है, वो दैट क्लास इज अवेलेबल ओनली फॉर login component, right? It is not available anywhere else. So what I'll do is I need to find a place wherein this class would be available everywhere. So what I'll do is I'll remove this from here. Right, and there is a file called as styles.css, and I'll add that class here. तो styles.create यहाँ पे लिखा भी है, देखो कि you can add global styles to this file, right? So that जो भी आप क्लास बना रहे हो वो क्लास it will be available at other places as well. Right, now let us see. Right, now this is available here. I'll go to login page. यहाँ पे I say something, it is available here as well. Right, so what is important thing that we have seen? It is कि अगर आपको ग्लोबली कोई क्लास बनाना है तो आप उसे styles.css फाइल में डालो, और लोकल स्पेसिफिक टू कोई कंपोनेंट बनाना है तो उस कंपोनेंट के CSS फाइल में डालो. दैट इज व्हाट वी हैव सीन हियर. राइट, ओके. अब हमने ये नेम बना लिया. Right, after this the next field which we'll have is, I'll copy this, I'll paste it here. Name के बाद में दूसरा क्या था field? Let's go into our form. It is email. Right, so I'll say email here.
right? Form control name is email dot text, email dot dirty, and email dot invalid. I'll say email is required and should be in proper format. ऐसा है कुछ तो एरर मैसेज हम लोग यहाँ डाल देंगे. लेट अस क्रॉस चेक अगेन. email dot touch, email dot dirty and email dot invalid. राइट, दिस email should also work. नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट was I guess mobile. Right, so here I'll say mobile. I'll use mobile. I'll use a mobile here as well. I'll make M capital. Right, then यहाँ पे I'll have mobile. Again mobile. Again mobile. And what is it that I would say? Mobile is required and should be in proper format. Right, now let us check कि ये mobile चलता है क्या. And should be in proper format. Right, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 नहीं चला. Right, now I give my mobile number 9967307515. ये भी नहीं चला, तो कुछ तो गड़बड़ है. मतलब क्या है कि ये पैटर्न जो है, दिस पैटर्न इज नॉट प्रॉपर. Right, we'll try for some other pattern. Let me try this one. राइट, ये मिन लेंथ मैक्स लेंथ का हटा दिया तो भी चल जाना चाहिए, वो पैटर्न में आ जाएगा. इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, जाने दो. Let's see if this works. हाँ, ये चल गया. Right, so if I give 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, right, it is giving me error. Right, but if I type some mobile number 8888755259, right, this thing works. Right, so this is a pattern which would work. Right, what it says is कि it should start with 7 to 9 and it can contain 0 to 9 numbers, यानी टोटल 9 नंबर्स विच कैन कंटेन 0 to 9. राइट, ये उसका मतलब है. तो फर्स्ट डिजिट वुड बी बिटवीन 7 to 9 and next 9 digits would be between 0 to 9. That is what it suggests. Right, तो ये हुआ मोबाइल. नेक्स्ट इज विल हैव अ फील्ड फॉर पासवर्ड.
I'll say password is required and should be in proper format जाने दो but अभी के लिए लिख देते हैं, right? Another important thing, its type would be password, right? And next I'll have another field which will be confirm password. Right, I don't need to put anything of this sort here in a ngif में, क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए स्पेसिफिक दूसरा कोई फॉर्म कंट्रोल नहीं है अपने पास, तो आई एम जस्ट रिमूविंग इट एज ऑफ नाउ, राइट? इट्स टाइप इज ऑल्सो पासवर्ड फॉर नाउ, ठीक है? एंड इसको मैं अभी के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई एम कन्फर्म कमेंटिंग इट, राइट? आगे चल के हमने क्या करना है, वी हैव टू से दैट ओके पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फील्ड्स शुड मैच, ये आगे चल के हमने करना है, राइट? पासवर्ड आ गया और कंफर्म पासवर्ड अपने पास आ गया, राइट? पासवर्ड इज रिक्वायर्ड एंड शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट, एरर मैसेज भी आ गया। यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, नथिंग इज हैपनिंग, राइट? नाउ व्हाट शुड हैपन इज, राइट, अब मेरी फंक्शनैलिटी, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, कि एज सुन एज आई स्टार्ट टाइपिंग समथिंग इन कंफर्म पासवर्ड, it should try to match with this password, right? That is what it should do, ठीक है? At the end we'll have a button, right? And button में I will say sign up, ठीक है? इन बटन आई विल से साइन अप, और उसके क्लिक पे इट शुड कॉल सम साइन अप फंक्शन, राइट? वो बाद में देखते हैं। नाउ एज सुन एज आई टाइप समथिंग इन दिस कंफर्म पासवर्ड वाला इनपुट पेज, इनपुट बटन, व्हाट इट शुड डू इज इट शुड मैच इट। तो ये मैचिंग कहाँ करोगे? कोई ना कोई फंक्शन पे करोगे, राइट? सो देर इज अनदर इवेंट, जैसा एक क्लिक हैंडलर होता है ना, वैसे ये की अप इवेंट होता है, की अप equals to, and I'll write some function match password, right? ऐसा कुछ तो कर सकते हो। so what I want is कि ये की अप इवेंट पे आपके जो पासवर्ड्स हैं वो मैच आपने करने हैं, राइट? दैट इज व्हाट आई वांट। व्हाट आई विल आल्सो डू इज कि इन माय साइन अप फॉर्म, राइट, आई विल हैव अनदर फील्ड कन्फर्म PWD या कन्फर्म पासवर्ड, इसको भी एक फॉर्म कंट्रोल दे देते हैं ताकि अपना ये आसान हो जाएगा, फॉर्म कंट्रोल, राइट? दैट्स इट। इसको और कुछ वैलिडेशन डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये कन्फर्म पासवर्ड को मैं उधर फॉर्म कंट्रोल नेम में डाल देता हूँ, राइट? सो आई विल से फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल्स टू confirm password, right? That is what I am saying here. अब ये जो match password जो है, this is the function which we need to create. So what I'll do is I go into this and I say match password. अब ये match password कब कॉल हो रहा है? Whenever you click on some key, यानी as soon as you start typing in match password, ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट द कंसोल हियर। मैं यहाँ जैसे ही टाइप कर रहा हूँ कुछ, इट इज प्रिंटिंग इन मैच पासवर्ड, अगेन इन मैच पासवर्ड, अगेन इन मैच पासवर्ड। नाउ इंस्टेड ऑफ इन मैच पासवर्ड, व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू प्रिंट व्हाट इज गेटिंग प्रिंटेड हियर। कंफर्म पासवर्ड में जो भी तुमने टाइप किया है उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो वो आपको कैसे मिलेगा? वो आपको ये तरीके से मिलेगा। सो आई वुड से दिस डॉट साइन अप फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट कन्फर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू। तो जो भी आप टाइप कर रहे हो वो चीज़ यहाँ पर प्रिंट होगी, राइट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। की अप इवेंट है, याद रखना, ASDF, राइट? तो जो भी आपके ये इनपुट फील्ड में है वो यहाँ पर टाइप हो रहा है।
अब हमें क्या करना है, ये चीज़ और पासवर्ड इन दोनों को मैच करना है, राइट। और अगर कुछ एरर आता है तो एरर वहाँ डिस्प्ले करवाना है, राइट। सो व्हाट विल आई डू, आई विल सिंपली से कि इफ ये कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू, राइट, डॉट इक्वल्स पासवर्ड की वैल्यू, राइट, और इफ दिस इज नॉट इक्वल्स, राइट। मैं सिर्फ एक तुमको आउटलाइन दे रहा हूं, ये करना तुमने ही है, राइट। आई विल से कंसोल डॉट लॉग passwords match, else I would say passwords don't match. अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ, राइट। नाउ लेट्स से इफ आई टाइप ASDFGH in my password, right, and in confirm password I say A, तो उसने क्या किया, value dot equals is not a function, okay, equal to चला ले भाई, या नॉट इक्वल टू बोल देता हूँ, ये नॉट हटा देता हूँ, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग आउट थिंग्स। ASDFGH मैंने डाला, कंफर्म पासवर्ड में A डाला, तो इट सेज पासवर्ड मैच, ठीक है। तो कुछ तो गड़बड़ है इक्वल टू में, तो स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे करना है वो आपने ढूंढना है ना। सो दिस इज अ टास्क फॉर यू ऑल, मुझे आता ही नहीं ऐसा मान के चलो, राइट, कि वो पासवर्ड जो है वो अगर मैच हुए तो ही वो होना चाहिए, राइट। द लॉजिक विच आई एम गिविंग यू इज दिस, कि अगर ये पासवर्ड मैच होते हैं तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज I'll take a data member password error, which is of the type string, right। उसको मैं equals to एक blank बोल देता हूँ यहाँ पर, यानी empty string बोल रहा हूँ, right। now here what I'll do is in my ng if, यानी ये जो div है यहाँ पे instead of checking anything out of this, what will I check, I will check कि password error dot length is greater than 0 अगर है, ठीक है, यानी ये स्ट्रिंग की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, राइट। तो ये डिस्प्ले कराओ, अदरवाइज डिस्प्ले मत कराओ, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन अ हेड्स अप, right, I am not going to implement this, right। So what I am saying here is I would say this dot password error equals to, and I would say passwords are not equal, right। this is what I am saying here। यहाँ पर अगर पासवर्ड मैच हो रहा है तो आई विल से दिस डॉट पासवर्ड एरर इक्वल्स टू ब्लैंक, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। एंड यहाँ पर ng if जो है, ng if में मैं यहाँ पर डिस्प्ले क्या करवाऊँगा कि अगर ये पासवर्ड एरर की लेंथ ग्रेटर दैन 0 है तो ये फील्ड एरर में आई वुड सिंपली से आई विल सिंपली बाइंड दैट डेटा मेंबर पासवर्ड एरर, ठीक है। तो ये दिस इज द थिंग विच इज सम काइंड ऑफ रिसर्च आइटम फॉर यू गाइज, राइट। अभी के लिए वो इक्वल टू नहीं चल रहा है, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू डॉट वैल्यू इज नॉट वर्किंग, राइट। सो यू नीड टू फाइंड आउट अ वे बाय विच यू विल बी एबल टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, राइट। एंड यहाँ पर आपका जो फंक्शन है, राइट, ये मैच पासवर्ड जो है, ये मैच पासवर्ड प्रॉपरली चलना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है कि ये पासवर्ड एरर
आप डिस्प्ले करवा रहे हो, राइट? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट? सो दिस इज अ टास्क विच यू नीड टू डू टूडे। एंड आपने एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर साइन अप एक फंक्शन बना देंगे। ये साइन अप पे आप क्या करोगे, राउटर से आई विल से navigate to login page, right? And also print value of the form, right? So this is the thing that you need to do it yourselves. ये मैच पासवर्ड फंक्शन जो है इसको आपने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है, राइट? दिस इज नॉट वर्किंग हियर। अच्छा, नॉट इक्वल्स टू पे ये किया है, ये इधर चाहिए। ये देखो ये काम कैसे करेगा, right? So it says passwords are not equal, right? Here if I give a 6 a डाला है मैंने, यहाँ पर if I give a, right? तो एरर चले जाता है, right? So that is how things work ideally, right? Another implementation which I also want you guys to do is write a function similar to match password which will return true or false. ट्रू कब रिटर्न करेगा, अगर पासवर्ड्स मैच होते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, राइट? एंड यूज दैट मैच पासवर्ड जो भी दूसरा फंक्शन है, यूज इट इन दिस ngIf. So if that function returns true, this would be displayed, otherwise this will not be displayed, right? So this is the thing, or this is the task which you need to perform today, right? I'll stop the recording.